Praise the Lord, dear family. प्रभु का धन्यवाद प्रिय परिवार। It's such a joy that we could able to meet and we could able to realize the value of fellowship. और ये कितने आनंद की बात है कि हम लोग इस तरीके से मिल पाए और सच में वो जो संगति है उसका मोल समझ सके। And I could able to today morning interact that we were waiting for this day that when we can meet our brothers and और sisters. जब मैं बातचीत कर रहा था तो सच में पता लगा कि कैसे हम अपने भाई बहनों से मिलने का इंतजार कर रहे थे। And this is the body of Christ. और ये मसीह की देह है। And our online family, brothers and sisters joining with us also. और हमारे जो ऑनलाइन भाई बहन जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन And with one spirit that we join and we experience the love of Christ in our life. That's the beauty of the church. और एक आत्मा के साथ हम जो है प्रभु की देह बनकर मिलते हैं, वही मसीह की देह की खूबसूरती है। So we know that 1 Thessalonians 5:16. Everyone knows that. और हम पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 जो है हम उसको जानते हैं। It says that we can turn to 1 Thessalonians 5:16 and 17. It says, rejoice always. और जो पहला थिस्सलुनीकियों 15 का 16 है जो कहता है कि सदा आनंदित रहे And pray continually. और निरंतर प्रार्थना करते रहें। Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. और हर बात में धन्यवाद करें क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। Giving thanks in all circumstances. और हर परिस्थिति में धन्यवाद करते रहें। But often we forget and we struggle to give thanks to God in our life. पर हम बहुत बार भूल जाते हैं और संघर्ष करते हैं प्रभु को धन्यवाद करने के लिए। Sometimes the blessings that God gives, we settled and we satisfied in those blessings. और भाई जो प्रभु हमें आशीष देता है हम उसमें मानो जैसे संतुष्ट हो जाते हैं और धन्यवाद देना भूल जाते हैं। And God again and again reminds that this is God's will, that for everything in our life, whether bad or good, we give thanks to God. और प्रभु बार बार हमें याद दिलाते हैं कि चाहे अच्छा हो या भला हो, बट हम हर बात में प्रभु को धन्यवाद करें। Even we know that Philippians 2:14-15 says, do everything without complaining and arguing. और फिलिपियो 2:14 कहता है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। Complaining, right? Complaining is so normal these days that we never understand when it creeps in, when it enters in our life, in our talk, in our dealings also. और ये जो कुड़कुड़ाना है वो इतना सामान्य हो चुका है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारे विचारों में, हमारी बातचीत व्यवहार में ये अंदर आ जाता है। This murmuring, this complaint, what is the reason? Where it begins this murmuring? और ये जो शिकायत करना, जो कुड़कुड़ाना है, उसका क्या कारण है? ये कहाँ से शुरू होता है? It often starts when we start believing that I deserve something in my life. और ये शुरू होता है जब हम ये सोचते हैं कि मैं इस बात के योग्य हूँ। I have become something and I deserve something better in my life. और मैं तो कुछ बन गया हूँ और अब मैं कुछ बेहतर जो है उसके योग्य हूँ। And I want to introduce one crown to you, Mr. Deserving. और मैं एक जो ताज है वो दिखाना चाहता हूँ। This is Mr. Deserving. मिस्टर डिजर्विंग यानी श्रीमान जो सोचते हैं कि मैं योग्य हूँ। You know, they start that I deserve honor. और वो सोचते हैं कि मुझे तो सम्मान मिलना चाहिए। I deserve more respect in my life. और मुझे और अधिक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। You know, more comfort, more convenience I should deserve. और मुझे और आराम मिलना चाहिए और सब कुछ सुखदायक होना चाहिए। And so many times we place such crown on our head. और बहुत बार इस तरह के जो ताज है हम हमारे सिर पर रखते हैं। And often it leads to murmuring and complaining in our life. और ये जो है बहुत बार उस शिकायत को और कुड़कुड़ाने की ओर लेके जाता है। Because why me? I deserve something better, Lord. और मैं कहता हूँ कि प्रभु मैं क्यों, मैं तो कुछ बेहतर रखता हूँ, योग्य हूँ मैं उसके। And this is how we enter into the complaining in our life, that I deserve better in my life. और जब मैं सोचता हूँ कि मैं तो किसी बेहतर बात के योग्य, उससे मैं उस कुड़कुड़ाहट की ओर जाता हूँ। And I think that I am entitled to receive something better which I am able for. और मैं तो सोचता हूँ कि मैं जो हूँ इस बात के योग्य हूँ क्योंकि मुझे कुछ बेहतर ही मिले। And when we replace this deserving spirit with a thankfulness in our life, और जब हम ये सोचते हैं कि नहीं मुझे तो कुछ मिलना ही चाहिए, इस आत्मा को जब हम धन्यवाद की आत्मा से बदल देते then हैं, complaining and murmuring start losing its grip in our life. तब ये जो शिकायत और कुड़कुड़ाने की जो आत्मा है उसकी पकड़ ढीली पड़ती है। And with the contrast, I want to introduce one more Mr. here. और इसके विपरीत मैं एक और श्रीमान को से आपको मिलवाना चाहता हूँ। This is Mr. Undeserving. और ये जो है श्रीमान जो सोचते हैं कि मैं किसी बात के योग्य नहीं। This brother stays very close to God's heart. और ये जो श्रीमान है, ये भाई जो है प्रभु के बहुत नजदीक रहते हैं। His language is always full of gratitude. और उसका जो बोलचाल है वो हमेशा धन्यवाद से भरा हुआ है। He thinks everything I have in my life it's only because of God's grace. और वो कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ है वो प्रभु के अनुग्रह से ही है। I don't deserve, it's only because that God has given to me.
और मैं किसी बात के योग्य नहीं हूँ, ये सिर्फ प्रभु ने मुझे दिया है। It says, my Father is my provider. और वो कहता है कि मेरा जो पिता है वो मुझे देने वाला है। And he said, thank you, Lord, for everything. और वो कहता है प्रभु धन्यवाद हर बात के लिए। And recently I started looking, when I received my salary monthly, I received it. और हाल में ही जब मुझे मेरी जो सैलरी मिली, I used to call it salary earlier. पहले मैं उसको कहता था कि ये मुझे तनख्वाह मिली है, But through the trials that I went through, now I started calling my Father's provision. पर अब जब मैं उन परीक्षाओं से निकला, अब मैं कहता हूँ कि ये मेरे प्रभु ने मेरे लिए प्रयोजन किया है। It brought so deep thankfulness for God that God has enabled us. और ये मेरे अंदर इतना धन्यवाद लेकर आया कि प्रभु ने हमें इस योग्य बनाया है। It is not me, my strength, my skill, but it is only because of God that we can earn and we can get our provision from God. और ये मैं नहीं, मेरी ताकत नहीं, मेरा स्किल नहीं, परंतु प्रभु की का अनुग्रह जिसके द्वारा मैं कुछ कमा पाता हूँ। So brother and sister, the question is, which crown are we wearing today? और आज सवाल ये है कि किस ताज को लेकर हम घूम रहे हैं, Are we wearing the crown of deserving? और क्या हम मैं इस बात के योग्य हूँ उसका ताज लेकर चल रहे हैं। And the deserving, the throne is murmuring and complaining. On that throne, deserving, Mr. Deserving is sitting there. और फिर उस जो सिंहासन पर है उस पे मैं शिकायत और कंप्लेन को मैं रख रहा हूँ। Or are we choosing gratitude in everything? Lord, I am undeserving, Lord. और या फिर हम धन्यवाद को लेकर आते कि हाँ प्रभु मैं तो इसके योग्य भी नहीं हूँ। Let's examine ourselves, brother and sister, at our home, at our workplace, in church. और आइए कि हम हमारे घर में, हमारे काम की जगह, हमारी चर्च में अपने आप को जांचें। Do we have silent complaints in our life? क्या एक जो अंदर शांति के साथ जो है वो शिकायत हमारे अंदर है? Against our spouse sometime, against our children, against our bosses, at workplace. कई बार हमारे पति पत्नी के खिलाफ, हमारे बच्चों के खिलाफ, और कई बार हमारे बॉसेस के खिलाफ। Children, do you have complaints, silent complaint against your parents? और क्या आपके मन में वो चुपके से वो एक शिकायत आपके मन में आपके माता पिता के खिलाफ? Because they didn't allow something that you desired. और कुछ ऐसी बातें जो आप चाहते हैं करना, उसकी आज्ञा वो आपको नहीं देते They हैं। said no to something which you wanted to do in your और life. कुछ जो बातें आप करना चाहते हैं उसके लिए वो आपको मना करते हैं। And you are carrying Mr. Deserving, Mrs. Deserving. और आप जो है मैं इस बात के योग्य हूँ ऐसे श्रीमान और श्रीमती बन के घूम रहे हैं। Brothers and sisters, let's not forget that Israelites in the wilderness didn't die, didn't perish because there was lack of provision there. और याद रखें कि इजरायली जो है उस जंगल में इसलिए नहीं मर गए क्योंकि वहां पर खाना नहीं था। It was not like there is no food, no water. Everything was fully provided by और God. ऐसा नहीं था कि वहां उन पे खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, वहां पे सब कुछ प्रभु ने दिया। Because they were wearing the crown of Mr. and Mrs. Deserving. पर वो जो है श्रीमान श्रीमती जो योग्य है ऐसा ताज लेकर घूम रहे थे, Full of complaints and murmuring. और पूरी शिकायत और कुड़कुड़ाहट से भरे हुए। And they could not enter the promised land because of their murmuring. और वो उस वायदे के देश में नहीं जा पाए उनकी शिकायत कुड़कुड़ाहट के कारण। Brothers and sisters, let's cultivate the heart with thanksgiving in all circumstances. और आइए हर परिस्थिति में वो धन्यवाद का हृदय हम लेकर आए। Let's understand, really believe, not in words, that Lord, I don't deserve anything in my life, और Lord. सिर्फ शब्दों में नहीं, पर सच में इस बात पर यकीन करें कि हाँ प्रभु मैं किसी बात के योग्य नहीं हूँ। Let's turn to Deuteronomy 8 chapter. और व्यवस्था विवरण 8 का 10 खोलेंगे। We know this entire chapter reminds us of God's faithfulness in our life. और ये जो पूरा जो अध्याय है हमें प्रभु की विश्वास योग्यता को याद दिलाता है। And that how God blessed them, and there were some warnings also given there in this chapter. और कैसे प्रभु ने उनको आशीषित किया, साथ ही कुछ उनके लिए जो चेतावनियां भी उनको दी गई हैं। When God has blessed us, we have good land, we are satisfied, we might forget God also. और जब हमें प्रभु आशीष देता है, हमारे पास अच्छी जमीन होती है, हो सकता है हम प्रभु को भूल We जाएं। can read Deuteronomy 8 verse 13 and 14. और हम व्यवस्था विवरण 18 का 13 और 14 पढ़ सकते We'll हैं। read in Hindi. और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासवत के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। So it said herds and flocks and silver and gold, it is written here. और यहाँ पर लिखा है गाय बैले और जो सोना चांदी वहां पर लिखा हुआ But in है। the today's version, if we say the salary package, the comfort, the convenience, when it increases, और आज के समय में हम कह सकते हैं कि हमारा जो सैलरी है, हमारे जो पर्क्स हैं और जो हमारा आशो आराम है वो, when it increases, it says, the warning says that we have a tendency to forget always. और ये कहता है कि ये जो सब बढ़ने लग जाता है तो हमारे अंदर ये प्रवृत्ति होती है सारी बातों को And we भूल जाने की। start getting God's blessing so granted that we are satisfied just in the blessings only. और फिर होता है कि प्रभु के उस अनुग्रह को हम भूल जाते हैं और सारी बातों को हल्के में लेने लग जाते हैं। We want to stay hungry for the God in our life. पर हमें जो है प्रभु के लिए भूखा रहना है। Psalms 103 says, 103, that bless the Lord, O my soul, forget not
any of his benefits. और भजन संहिता 103 एक कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को मैं ना भूलूं। So in this chapter, there are a lot of blessings God has given them. और इस अध्याय में प्रभु ने उन लोगों को बहुत सारी आशीषें दी Maybe हैं। when we get free, at home, we can read this entire chapter that what all blessings and provisions God has provided और for हमारे Israelites. घर में जो है हम जाकर पढ़े कि प्रभु ने इजरायलियों को क्या क्या आशीषें दी थी। And this chapter is blessing, giving thanks to God for the blessings that God has given. और ये जो अध्याय है वो प्रभु को धन्यवाद देना है उन आशीषों के लिए जो प्रभु ने हमको दी This is a basic level of gratitude which says for the blessing. और ये जो है धन्यवाद करने का एक मानो एक बहुत ही बेसिक लेवल है। We कि teach our धन्यवाद children, we teach our children that thank you for the food. करें। और हम हमारे बच्चों को सिखाते हैं कि खाने के लिए धन्यवाद करें। Thank you for the breath of life, for the life, for the blessings that we enjoy in our और life. हमारे जीवन के लिए हमारी सांसों के लिए हर बात जिसका आनंद लेते हैं उसके लिए धन्यवाद। For the family, for everything that we enjoy in our life. हमारे परिवार के लिए हर बात के लिए जिसका हम आनंद उठा रहे And हैं। this is a gratitude that because we have received something, we try to give God, give thanks for the Lord. और हम धन्यवादी हैं क्यों? क्योंकि हमने प्रभु से कुछ पाया है। His protection, His provision and everything. उसकी सुरक्षा, उसका प्रयोजन और सारी बात जो उसने हमारे लिए किया। Moses taught these people, Israelites, that we should give thanks for every blessings that we have. और मूसा ने लोगों को इजरायलियों को सिखाया कि जो कुछ प्रभु ने हमें आशीष दी उसके लिए हमें प्रभु को धन्यवाद करना है। God is calling us to go higher in giving thanks to God. पर प्रभु चाहते हैं कि उस धन्यवाद करने में हम और आगे ऊंचे स्तर पर जाएं। And we read about David, he was God's own heart. He was a person, a man with God's own heart. और हम जानते हैं दाऊद जो था प्रभु के मन के अनुसार एक व्यक्ति था। And he showed what is deeper thanksgiving in our life. और वो दिखाता है कि उस गहरे में जाकर धन्यवाद करना We क्या know है। he was anointed by Samuel to be the king of Israelite. और हम जानते हैं कि सैमुएल के द्वारा उसका अभिषेक किया गया था इजराइल का राजा होने के लिए। But before that crown comes, he was running here and there, wondering for his life, cave to cave, desert to save his और life. राजा बनने से पहले अपने जीवन को बचाने के लिए वो इस गुफा से उस गुफा, यहाँ से वहां भाग रहा था। Nearly 15 years he was running here and there. और लगभग 15 साल वो इधर उधर भाग रहा था जान बचाने But के लिए। through those desert, through those wilderness, he developed intimacy, a relationship with his God. और पर वो जो तराई थी, जो अंधकार था, उसी दौरान उसने प्रभु के साथ एक संबंध को बनाया। And we read it, we know this Psalm 23 Psalm. और हम भजन संहिता 23:4 जानते हैं, He says, Lord is my shepherd. जो कहता है कि प्रभु मेरा चरवाहा है I shall not want. और मुझे कोई घटी नहीं In the होगी। wilderness, when he is running for his life, there is no provision for his life. और जब उस जंगल के मार्ग में वो भाग रहा था जहाँ पर कुछ भी नहीं था And प्रयोजन, he says, verse 4, that even though I walk through the valley of shadow of death, और वो I will कहता है- not fear evil, but you are with me. और वो कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं फिर भी मैं नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। And this is a mature gratitude, brothers and sisters. और ये जो है एक सयाना धन्यवाद का स्वभाव है। Not just giving thanks to God for the blessing, और ना केवल उन आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद करना, but giving thanks even though. पर धन्यवाद देना फिर भी अगर ना हो, Even though the darkness is still surrounding in our life, we will give thanks. फिर भी अगर हमारे जीवन जो है उन अंधकार से घिरा हुआ है फिर भी हम धन्यवाद देंगे। Even though my prayers are not answered, Lord, still I will praise you and give you thanks, Lord. मेरी जो प्रार्थना है उनका उत्तर अगर ना भी मिले प्रभु फिर भी मैं धन्यवाद दूंगा। Even though there are closed doors, Lord, still even though I'll praise you. अगर मेरे सारे दरवाजे बंद हैं फिर भी प्रभु मैं आपको धन्यवाद दूंगा। And even though, Lord, I'm walking through valley, I will praise you, Lord. और प्रभु मैं अंधकार से भरी हुई तराई से होकर जाऊं फिर भी मैं प्रभु को धन्यवाद Because करूंगा। we know that everything together is working for our good. क्योंकि हम जानते हैं कि सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती है। And this is what we read that 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith and not by sight. और दूसरा कुरिन्थियों में हम पढ़ते हैं कि हम जो है विश्वास से चलते हैं, आंखों से नहीं। And I've been experienced this in our life, in my life, that praising God in every circumstances, such a joy it is. और मैं सीख रहा हूँ कि प्रभु को हर परिस्थिति में धन्यवाद देना कितना ही आनंद की वो बात Just last week we received a notice. है। और पिछले हफ्ते ही हमें एक नोटिस मिला It was related to the house or something. और हमारे घर से इससे संबंधित वो था। It was unexpected and it was stressful. और वो अनएक्सपेक्टेड था और बहुत ही स्ट्रेस लाने वाला But the था। moment we received that notice, और जैसे ही हमें वो नोटिस मिला and God filled our heart that I told my wife this. और प्रभु ने मेरे मन को डाला और मैंने अपनी पत्नी से इस बात को And कहा। this time we will not complain or murmur or be fearful. और इस समय जो है हम शिकायत नहीं करेंगे, डरेंगे नहीं। God has done already great things in our life. और प्रभु ने पहले ही हमारे जीवन में बहुत अद्भुत काम किए हैं। And this time we will choose to praise and thank God for everything that God has allowed in our life. और हम इस बार
चुनाव करेंगे कि हम प्रभु ने जो कुछ हमारे लिए किया उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। Let us turn to Genesis 29, और हम जो है अभी उत्पत्ति 29 को खोलेंगे verse 31 onwards. और 31 से। Genesis 29, we read about the story of Leah and Rachel here. और हम लिया और राहेल के बारे में विषय में पढ़ते हैं। We read in 29:31, it says, Leah was unloved. और हम लिया के विषय में पढ़ते हैं कि वो जो 31. 31 ओके लिया जो थी वो अप्रिय जानी गई She was not loved by Jacob. और वो जो है याकूब उसे प्यार नहीं करता था। Verse 17 also, the same chapter 17, we read, Leah was weak. She was not so beautiful as Rachel. और 17 वचन में लिखा है कि लिया की आंखें तो धुंधली थी और वो राहेल की जैसे सुंदर नहीं थी। We know Leah was given in marriage through deceit. और हम जानते हैं कि धोखे के द्वारा लिया को शादी याकूब से कराई She गई was tricked by her own father Laban. और उसके खुद पिता के द्वारा ये धोखा दिया गया। Even after this arrangement, this trickery arrangement, the Jacob was not loving her. और इस धोखे से जो शादी कराई गई उसमें जो याकूब था वो लिया को प्रेम नहीं करता था। As if she was unwanted and rejected woman. और जैसे वो जो था जिससे उसको कोई नहीं चाहता था और उसका तिरस्कार हुआ है। Whereas Rachel was beautiful and loved by Jacob. और वहीं पर जो राहेल जो थी उससे याकूब प्यार करता था। And I believe that, Leah might have been really tempted to compare herself with Rachel. और लिया की जो परीक्षा हुई होगी कि वो जो है अपने आप को राहेल से अपनी तुलना करे। And sometimes we have tried to, love, but we are rejected in our life. और बहुत बार ऐसा होता है कि कोई हमसे प्यार करे पर हमारा तिरस्कार होता है। And you have done good, but people misunderstand us and they harmed us. और आपने तो अच्छा किया उसके बाद भी प्रभु ने लोगों ने आपको गलत समझा और आपको रिजेक्ट कर दिया। And we see other people are favored more than us. और हम देखते हैं कि दूसरे जो लोग हैं उनको ज्यादा फेवर दिया जाता है। Why always them, Lord, not me? और क्यों हर बार वो ही और मैं नहीं। And verse 31 it says, she was unloved by men but not forgotten by God. We can read in verse 31. और 31 में लिखा है कि जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई And he opened her. तब प्रभु ने उसकी कोख को खोला। She was unloved by men और वो जो है लोगों के द्वारा अप्रिय जानी but गई not forgotten by God. पर वो प्रभु के द्वारा भूली नहीं गई। God opened her womb. और प्रभु ने उसकी कोख को खोला। And this is encouragement for all of us. और ये जो है हम सब के लिए एक प्रोत्साहन We है। might be feeling today like Leah. और हो सकता है कि आज जो हम हैं लिया के जैसे अपने आप को देखते हैं। But there comes a time that he will not allow our testing beyond our ability to bear it. और प्रभु जो है हमारे सहने से बाहर हमें परीक्षा में लेकर नहीं जाएगा। He will provide the way of escape. और वो हमारे लिए छुटकारे के लिए द्वार को भी खोलेगा। There is a due season in our life God has appointed, brothers and sisters. और प्रभु ने जो है उसके लिए उस छुटकारे के लिए एक समय को ठहराया है। Now we can see a broken woman, unwanted, not loved by her husband. और हम देख सकते हैं कि एक जो स्त्री टूटी हुई है और जिसको उसका पति प्रेम नहीं करता। She is trying all her efforts to gain to receive the husband's love. और हम उसके प्रयत्नों को देखते हैं जिसके द्वारा वो अपने पति के प्रेम को पाने की कोशिश कर रही है। First attempt, verse 32. और We can पहला read this. प्रयास जो उसने किया 32 में हम लिखते हैं, अतः लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र हुआ और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा, यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। And he says that first son she conceived and her son's name was Reuben. It means in margin it says Bible, see this is my son. और अब वो गर्भवती हुई और उसको पहला बच्चा हुआ जिसका नाम उसने रूबेन रखा, जिसका मार्जिन बाइबल में इस तरीके से लिखा है कि देखो मुझे बेटा हुआ। Yes, to see the Lord has noticed, it says in 32, the Lord has noticed my misery and now my husband will love me. और प्रभु ने मेरे दुख को देखा और अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। She was trying to be seen by her husband. और वो कोशिश कर रही थी कि उसका पति अब उसको देखे। Have we tried to show something to gain love and acceptance in our life? और क्या हम कुछ ऐसा करते हैं ताकि लोगों को दिखा सके और उनके प्यार को हम पा सके? Because we carry insecurity that somebody, in our school, in our colleges, our friends should accept us. और क्योंकि हमारे अंदर ये असुरक्षा होती है कि हमारे घर में या हमारे स्कूल में हमारे दोस्त हमको स्वीकार करें। And that, like the Reuben, it says, look at me, see, I'm trying to gain and receive your attention. और रूबेन के जैसे वो कह रहे हैं कि देखो मुझे आपका वो अटेंशन चाहिए। But that effort could not succeed. पर उसका जो प्रयत्न था वो सफल नहीं हुआ। And then verse 33. और फिर 33 अध्याय,
फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र हुआ। तब उसने यह कहा, यह सुन के कि मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम शिमोन रखा। Now, second son, she brings Simeon. और जो दूसरा बच्चा वो लेकर आती है वो शिमोन है। The margin it says that Simeon means to be heard. और शिमोन का जो मतलब है वो है कि अब सुना जाना। Lord has heard that I am unloved. और प्रभु ने सुना कि मैं अप्रिय हूँ, She was longing to be heard. और वो इस बात की लालसा कर रही थी कि कोई उसकी सुने। That longing someone to hear my side, my story, that somebody should listen to me. और ये लालसा कि कोई मेरी तरफ की कहानी भी सुने, मेरी बात बीती भी सुने, Listen to my pain, that what I am going through in my life. और सुने कि मैं कितना मेरे जीवन में उस दर्द से होकर जा रही हूँ। And no one considers me. और कोई भी मुझे कंसिडर नहीं करता। This attempt got failed. पर ये प्रयत्न भी फेल हुआ। Third, verse 34. और फिर तीसरा 34 अध्याय, फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि उससे मेरे 3 पुत्र हुए हैं। इसलिए उसने उसका नाम लेवी रखा गया। The third son, Levi, came, and it says margin, it says attached. और लेवी उसका नाम रखा गया, जिससे है कि अटैचमेंट, एक जुड़ाव। So now she was so confident. She said, surely this time my husband will become attached to me. और इस बार उसको बहुत अश्योर था कि अब तो मेरा पति मुझसे प्रेम करेगा और मुझसे जुड़ जाएगा। Since I have given 3 sons to Jacob, that he will love me now. He will get attached to me. और क्योंकि मैंने तो उसको 3 बेटे दिए हैं, अब तो वो मुझे प्यार करेगा, अब तो वो मुझसे जुड़ा रहेगा। But this time also she could not able to succeed. पर इस बार भी वो सफल नहीं हुई। She was so broken, so weak and rejected woman. और वो जो थी बहुत कमजोर थी, टूटी हुई थी, She was longing for affection and love. और वो जो है उस प्रेम की वो बहुत ही ज्यादा लालसा कर रही थी। But even though giving so much her heart and everything, she could not be loved by her husband. और इतना कुछ करने के बाद भी उसके पति के द्वारा वो उस प्रेम को उसने नहीं पाया। Do we carry that spirit or the feeling of Leah inside of us these days? और क्या हम जो है हमारे भीतर भी ये वो जो लिया की जो आत्मा है उसको लेकर घूमते हैं? Maybe we are trying to gain the attention, the love of our husband or our wife. और क्या हम हमारे पति या पत्नी के उस ध्यान को हमारी तरह आकर्षित We are करना trying चाहते our हैं? level best that they should love me. और हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो मुझसे प्यार करें। And we're trying to see that surely this time my situation will change. और हम कहते हैं कि हाँ, इस बार तो मेरी परिस्थिति बदलेगी। Surely this time my wife, my husband will understand me. हाँ, इस बार तो वो मेरे पति या पत्नी मुझे समझेंगे। I have tried enough. और मैंने बहुत प्रयत्न कर लिया। And so many times we carry this cry in our heart, और बहुत बार उस जो रोना जो हमारे भीतर उसको हम लेके घूमते हैं। trying to be loved, trying to be accepted by our efforts, by something that I can do. और मेरे प्रयत्नों के द्वारा जो मैं कर सकूं उसके द्वारा वो लोग मुझसे प्यार करें, मुझे वो प्यार मिले। Such a confident in this 33 verses, surely this time things will work, my husband will love me. और ये जो वचन में लिखा है कि हाँ, इस बार तो जरूर मेरा पति जो मुझसे प्रेम करेगा। But the beautiful truth, when people don't see, God sees us. और कितना सुंदर ये सत्य है कि जब लोग हमें नहीं देखते हैं, प्रभु हमें देखता है। When people they don't hear us, God hears our cry. जब लोग हमें नहीं सुनते हैं, प्रभु हमें सुनता है। When people don't choose, God has already chosen us. और जब लोग हमें नहीं चुनते, बट प्रभु ने हमें पहले से चुना है। We are never forgotten. और हम कभी भी भुलाए नहीं गए हैं। And brother and sister, the good news, the story doesn't end here. और अच्छी बात ये है कि ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। Leah didn't stop at Reuben and Simeon and Levi. और जो लिया जो थी वो रूबेन और शिमोन और लेवी तक नहीं बंद हो गई। Here comes a change, verse 35. और फिर एक बदलाव आता है 35 वचन। Can read that. और फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी, इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। So Jacob is still not loving her. और जो याकूब है अभी भी उससे प्रेम नहीं कर She's रहा है, still broken woman, अभी भी वो टूटी हुई स्त्री है rejected, unwanted. और तिरस्कार की गई है, अप्रिय। 3 attempts she did that Jacob will love me. और 3 प्रयत्न उसने किए कि याकूब जो है मुझसे प्यार But करेगा, nothing worked for her. पर उसके लिए कुछ भी बात काम नहीं But she किया। decided that now I'll change my perspective. पर अब उसने सोचा कि मेरा जो ध्यान है मैं उसको चेंज करूंगी, Whether Jacob loves me or not, I will praise God. और याकूब मुझसे प्रेम करे या ना करे, मैं प्रभु की स्तुति She करूंगी। conceived the 4th son Judah, which means praise the Lord or praise. और फिर उसको चौथा पुत्र हुआ जिसका नाम उसने यहूदा रखा, उसका मतलब है प्रभु का धन्यवाद हो। And then she praises God और फिर because, yeah. और वो फिर प्रभु को धन्यवाद करती है। And she decided that, Leah decided, even though my husband could not be attached with me,
I will praise. और उसने कहा कि भले ही मेरा पति मुझसे मुझसे जुड़ा ना रहे, फिर भी मैं प्रभु की स्तुति करूंगी। Even though I'm unloved and rejected, I will praise the Lord. और भले ही मैं अप्रिय हूँ, तिरस्कारित हूँ, फिर भी मैं प्रभु की स्तुति Even करूंगी। though I'm passing through darkest valley, I don't understand anything, but I still praise the Lord. और भले ही मैं अंधकार से भरी हुई तराई से होकर जाऊं, फिर भी मैं प्रभु की स्तुति Enough करूंगी। I've tried to approve or prove myself or gain people attention, but now I will praise the Lord. और मैंने बहुत प्रयत्न किया कि मैं लोगों के ध्यान को, उस प्यार को बढ़ूं, पर नहीं, अब मैं प्रभु की स्तुति करूंगी। Now I'll not go to people, I will go to God with my Judah, with my praise. और अब मैं लोगों के पास नहीं जाऊंगी, पर मैं मेरे उस यहूदा को लेके प्रभु का धन्यवाद करूंगी। And verse it says in 35, it doesn't matter if my husband loves me or not, but this time I will praise the Lord. और वो कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा पति मुझसे प्रेम करे ना करे, पर अब मैं प्रभु की स्तुति What a करूंगी। wonderful thing she did, Leah. और कितना ही अद्भुत बात उसने लिया ने की। Let me ask you one thing, brothers and sisters. और मुझे आपसे एक सवाल करना है मेरे प्रिय भाई बहनों। Have you spent your life showing Reuben and Simeon and Levi? और क्या आप अपने जीवन को उस रूबेन, शिमोन और लेवी को दिखाने में आपने खर्च किया है? Trying to be noticed in office, आपके ऑफिस में आप जब जाने जाए ध्यान दें, and someone else is taking the credit. Oh, I should be noticed, I should be getting that. अरे दूसरे को तो वो प्रमोशन मिल रहा है, नहीं मुझे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। Trying to be understood by other people. और लोग मुझे भी समझे, इस बात की कोशिश कर रहे हैं। Trying to belong to such group in college, in the schools that we go. और हमारे स्कूल या कॉलेज में कोई जो ग्रुप है, हम उसका भाग है, ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं। This is a very good group. If I don't join this group of people in school or colleges, I'll be left alone. और ये तो स्कूल और कॉलेज में बहुत अच्छा ग्रुप है, अगर मैंने नहीं ज्वाइन किया तो मैं अकेला रह जाऊंगा। It's like you carrying the Levi, you are trying to attach in that group to get the attention. और ये इस तरीके से जैसे उस लेवी को आप लेकर चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उस जो ग्रुप है उसके साथ आप जुड़ जाएं। Maybe brothers and sisters, this is time for all of us to bring Judah before our God. और ये प्रिय भाई और बहनों, ये समय है कि अब हम प्रभु के सामने उस यहूदा को लेकर In आए the middle of the valley, we will praise God. और उस तराई के मध्य में भी हम प्रभु की स्तुति We know करेंगे। Jonah was in the belly of fish for 3 days. और हम जानते हैं कि जोना जो था वो मछली के पेट में 3 दिन था। There was no prophecy that he was knowing that I will come out or not. All darkness around. और चारों तरफ अंधकार था और ऐसा कोई भविष्यवाणी नहीं थी कि वो बाहर निकलेगा। And he was praying, he was crying. I don't know. I've never heard that people might gone into belly of fish and be alive. और मैंने नहीं सुना कि कोई जो मछली के पेट के अंदर गया हो और वहां से वो जिंदा आया हो। But you know, in Jonah 2, second chapter, we know first till 8th verse, he is praying to God. और हम योना 2 अध्याय पढ़ते हैं कि वहां पर जो है वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। But in 9th chapter, something changes. In 9th verse, something पर changes. जो 9वां वचन है वहां पर कुछ बदल जाता है। It says, योना कहता है, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मांगी उसको पूरी करूंगा, उद्धार यहोवा ही से होता है। and Jonah says, even though in the darkest valley, I will praise God. और योना ने कहा कि प्रभु इस अंधकार भरी तराई में भी मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। We know about Jehoshaphat that there was a big army was surrounding and battling against him. और हम यहोशापात के बारे में जानते हैं कि एक बड़ी सेना ने उसको घेर लिया था He started praising God, और वहां पर उसने प्रभु की स्तुति की and God gave them victory. और प्रभु ने उनको वहां पर जय दी। Here is the secret, brothers and sisters. और यहाँ पर वो सीक्रेट है, मंत्र है। God honored Leah's praise. और प्रभु ने जो लिया का जो स्तुति था उसका आदर किया। Out of her all son, God chose Judah और उसके सारे बच्चों में से प्रभु ने यहूदा को चुना। to the line where from Jesus and David came. वो पीढ़ी जहां से प्रभु यीशु मसीह आए। It was not Reuben, not Simeon, not Levi. और वो जो रूबेन, शिमोन या लेवी की पीढ़ी नहीं थी। But in Matthew we can read that it was Judah that God chose, that Jesus will come from that. और हम मत्ती में पढ़ते हैं कि यहूदा वो गोत्र था जहां से प्रभु यीशु आए फिर। And the Savior of the world came to the world because of this praise. और जो हमारा जो जगत का उद्धार करता था वो आया इस जो धन्यवाद हुआ। Because of the one rejected, broken, unwanted woman decided that enough now, I will praise God. क्योंकि एक टूटी हुई, तिरस्कार की हुई अप्रिय स्त्री ने ये ठाना कि अब मैं प्रभु की स्तुति करूंगी। And when we praise God in our even though moments of our life, और जब हम हमारे फिर भी ऐसे जो क्षण होते वहां पर जब हम प्रभु की स्तुति करते like हैं, Leah,
we लिया के start जैसे, giving birth to Jesus in our और situation. फिर वहां पर हम प्रभु यीशु को जन्म देते हैं, We bring God's presence, God's aroma in our situation. और फिर हमारी परिस्थितियों में प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की सुगंध को हम लेकर आते We हैं, bring the light of God in our darkness. और फिर वहां पर हमारे अंधकार में हम प्रभु की ज्योति को लेकर आते हैं। Psalms 22:3 says, God is enthroned on the praises of his people. और भजन संहिता 22:3 में लिखा है कि परमेश्वर जो है इजराइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। Yes, we can praise God even in the losses. और हाँ, हम हमारे नुकसानों में भी प्रभु की स्तुति कर Even सकते in हैं, pain, we can praise God. और हमारे दर्द में भी हम प्रभु की स्तुति कर And सकते we हैं। create a throne for Jesus when we praise God in our life. और जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं तब हम परमेश्वर के लिए एक सिंहासन को बनाते हैं। Brother and sister, I am not sharing some formula with you, और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं कोई फॉर्मूला आपके साथ नहीं शेयर not कर रहा some हूँ, emotional technique with you. और ना ही कोई इमोशनल टेक्निक शेयर कर रहा That हूँ। if you praise God in your circumstance, everything will change. और ऐसा नहीं कि आप स्तुति करेंगे तो सारी परिस्थितियां बदल This is जाएंगी, not about that. ये उसके विषय में नहीं है। God is sovereign. परमेश्वर जो In his wisdom, in his perfect time, he does what is his will. और उसकी बुद्धि में और उसकी समझ में वो जो सही है वो उसके समय पर वो करेगा। We are not giving thanks with the intention that God will change. This is like a formula, I'm going to God. It's not the purpose. और हम इसलिए धन्यवाद नहीं करें कि ये फॉर्मूला है, मैं धन्यवाद करूंगा तो सब बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। But by praising God, we are aligning with God's will and purpose closely. पर धन्यवाद देने के द्वारा प्रभु की जो योजना है उसके साथ हम एक होते हैं। Lord, I don't feel like giving you praise because nothing is working in my हाँ my प्रभु, life. मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं धन्यवाद दूं क्योंकि मेरे जीवन में तो कुछ भी काम नहीं कर But रहा I है, trust you, Lord. पर मैं आप पर भरोसा करता हूँ। Even here in this darkest valley, Lord, I'll trust you. हाँ, इस अंधकार भरी तराई में भी प्रभु मैं आप पे विश्वास करता Even हूँ। though I'm passing through this long time, Lord, I will praise you, हाँ, Lord. बहुत लंबे समय से मैं उस बात से जा रहा हूँ, फिर भी मैं प्रभु को धन्यवाद And करूंगा। the highest praise in our life we can give when we say, let your will be done, Lord. और सबसे जो बेहतर जो हम प्रभु को जो स्तुति दे सकते हैं वो ये है कि हाँ प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो। And I'm learning this mystery and the power of praise in my life these days, brothers and sisters. और ये जो स्तुति करने का जो रहस्य है और जो उसकी जो सामर्थ्य है उसको मैं सीख रहा हूँ। Because in the trials, enough I have complained in my murmuring and murmuring. हाँ, मेरी परीक्षाओं में मैंने अब बहुत शिकायत और कंप्लेन की है। So many times when I share my trouble and trials with someone, unwillingly also sometimes silently I'm complaining. हाँ, जब मैं मेरी जो परिस्थितियों को लोगों के साथ बांटता हूँ तो जाने अनजाने में कहीं ना कहीं मैं शिकायत भी कर देता हूँ। Yes, we should definitely share our prayer requests, but what is behind the intention that I'm trying to complain someone about my office people or something? हाँ, हम प्रार्थना के लिए उन बातों को साझा करना है, पर उसके पीछे हमारी क्या इंटेंशन है, क्या इच्छा है कि क्या हम कंप्लेन कर रहे हैं? It's easy to thank God for the blessings. हाँ, बहुत आसान है आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद That's करना। what we read in Deuteronomy 8. और यही हमने व्यवस्था विवरण 8 में पढ़ा। Because that's thanksgiving is basis on the provision of God. और वो जो धन्यवाद है वो प्रभु का जो प्रयोजन है उस पर निर्भर है। But when you have to praise God, even though in our life, पर जब हमें प्रभु को स्तुति देनी हो, फिर भी ऐसी वाली परिस्थिति जब है, it requires faith in God's power and wisdom. और उस धन्यवाद के लिए प्रभु के पर विश्वास और उसकी सामर्थ पर भरोसे की जरूरत है। And God, the power belongs to God in our life. और वो जो सामर्थ है वो प्रभु का है, And that's why we can praise God. और इसलिए हम प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। And I want to share one experience. Last week I was traveling and I was waiting at one station. और लास्ट वीक में ट्रैवल कर रहा था और एक स्टेशन पे मैं खड़ा इंतजार कर रहा था। And I was not having the Tatkal ticket and I was waiting 11 o'clock that some brother and sister are trying to book the और Tatkal मेरे ticket. पास टिकट नहीं थी, हम तत्काल की बुकिंग का ट्राई कर रहे थे। I was standing there and I was anxious about my work and there are a lot of problems and then other areas also. और मैं बहुत सारे मेरे काम की और बहुत सारी दूसरी चीजों को लेके चिंता सा कर रहा था। And then was one beggar passed by me. और उस समय एक जो भिखारी था वो मेरे पास से गुजरा, A rag picker who stood in front of me. और मेरे सामने जो एक कचरा बीनने वाला भी था, And he said one thing. और उसने एक बात कही। He says that you praise God, power belongs to God. और उसने मुझसे कहा कि तुम प्रभु की स्तुति करो, सामर्थ्य तो प्रभु का है। In Hindi he said, तुम भक्ति करो, शक्ति उसकी है. और हिंदी में ऐसे कहा कि भक्ति करो, शक्ति तो उसकी है। And he ran away from that और फिर place. वो वहां से भाग गया। And I received the message from God. और फिर मुझे प्रभु से एक मैसेज मिला That power belongs to our God, brothers and sisters. कि जो पावर है, जो सामर्थ्य है वो प्रभु का है। We might be thinking in our people are against us, people are scheming against us, and lot of things they are doing against और us. हम सोचते होंगे कि लोग मेरे खिलाफ है, वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। But let's remember the power and authority of heaven and earth belongs to our God, our Father.
और हम इस बात पर विश्वास करें जो सामर्थ है और जो है प्रभुता जो है वो प्रभु की है। Acts chapter 16 we read और प्रेरितों के काम 16 में हम पढ़ते हैं is 25. और उसके 25 वचन में We read this context that Paul and Silas were falsely accused, severely beaten, and they are in the prison. और पौलुस जो सिलास थे उन पर झूठा आरोप लगाया गया, उनको बहुत मारा गया Their feet और, are also stocks in the inner cell. और उनको जो है बेड़ियों से बांध दिया गया, उनके पैरों को भी। Very dark and painful place. और बहुत ही दर्द और अंधकार भरी जगह वो है। And one verse that really blessed me, Acts 16:25. और एक जो वचन ने मुझे बहुत आशीषित किया वो प्रेरितों के काम 16 का 25 है। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। And the word stood out to me at the midnight. और ये जो वचन जो वो शब्द है कि आधी रात में, And everything is dark around the midnight. No complaints, no murmuring. और आधी रात में जब सब कुछ अंधकार है उस समय कोई शिकायत कुड़कुड़ाहट नहीं है। Are we passing through that midnight season in our life today? और क्या हमारे जीवन में भी हम उस आधी रात वाले जो समय है उससे गुजर रहे हैं? Everything feels like it's injustice. It's all around dark. और ऐसा लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और सब कुछ अंधकार भरा है। But was Paul and Silas where their faith was in God. पर पौलुस और सिलास जो है उनका विश्वास प्रभु पर था। They knew God that we can still praise God even in chains. और वो प्रभु को जानते थे कि इन चेन्स के समय में भी, इस बेड़ियों में भी हम प्रभु की स्तुति कर And सकते हैं। Paul and Silas decided, even though we will praise God in this prison. और पौलुस और सिलास ने ये निर्णय लिया कि इस आधी रात, इस समय में भी, परिस्थिति में भी हम प्रभु की स्तुति And करेंगे। we also read like Habakkuk in the book of Habakkuk. और हम हबक्कुक में भी पढ़ते हैं। This person was, I can say that lot of complaints he had. और ये जो हबक्कुक है, इस व्यक्ति के मन में बहुत सारी शिकायतें थी। First chapter verse 2. और पहला का दूसरा अध्याय, He says, how long, Lord? और वो कहते हैं कि प्रभु और कितना देर। Then he says verse 2, you are not helping me, Lord. और वो कहते हैं कि प्रभु आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। Everywhere is violence. और हर जगह तो वायलेंस है। Verse 3, why this misery, Lord? और प्रभु इस तरह की दीनता क्यों है? Why these people are arguing and fighting with me? और ये जो लोग हैं मेरे साथ क्यों आर्ग्यू कर रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं? Verse 4, no justice, Lord. Everywhere wickedness is there. और कोई भी न्याय नहीं है, हर जगह इनजस्टिस है। And verse 14, very interesting. He said, are we like a fish? Anyone can catch us and kill us. और क्या हम उस फिश की तरह है कि कोई भी आए हमको मार के खा जाए? And verse 15, he said, why others are rejoicing over me? और कि प्रभु क्यों दूसरे लोग मुझ में आनंद मना रहे हैं? So many questions he had. और कितने सारे सवाल उसके हैं। Why this happening? Why that, Lord? और प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है? But in chapter 3, verse 17, he changed his perspective. पर जो अध्याय 3 का 17 है, वहां पर जो उसका पर्सपेक्टिव था, उसका देखने का नजरिया था, वो बदल गया। He says that even though I will rejoice, पर वो वहां पर कहता है फिर भी मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। whether I can see the results or not, I will rejoice in the Lord. और मैं जो परिणाम मुझे दिखे या ना दिखे, फिर भी मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। Habakkuk stopped trying to understand everything. और हबक्कुक ने अब सारी बातों को समझना, इस बात को अभी बंद कर या छोड़ दिया। If that is a question that is not important, Lord, for me, important is my God who is on the throne. और मेरे लिए ये जरूरी नहीं है ये परिस्थितियां, बट वो जरूरी है कि कौन उस सिंहासन पर He विराजमान is है still worthy. और वो फिर भी उस बात के योग्य है। Dear church, we are not praising God because we are receiving something. और प्रिय कलीसिया, हम प्रभु की स्तुति इसलिए नहीं कर रहे कि हमको कुछ मिल रहा है, But we are praising because of who He is. हम इसलिए स्तुति कर रहे हैं क्योंकि वो जो है। And this is what God is teaching us, that when we praise God, the fear and anxiety also loses its grips in our heart. और प्रभु ये सिखा रहा है कि जब हम उसकी स्तुति करते हैं तब वो जो डर है और जो चिंता है उसकी जो पकड़ है वो ढीली पड़ती है हमारे जीवन में। Brothers and sisters, let's not wait until the circumstances are perfect to give praise to God. और आइए प्रिय भाई बहनों, हम इंतजार न करें कि प्रभु को स्तुति देने के लिए कि सारी परिस्थितियां ठीक होंगी तभी हम स्तुति But करेंगे। today let's decide that even though I will praise God, और पर आज हम ये निर्णय ले कि फिर भी मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। I will trust God in every season of my life. और मेरे जीवन के हर समय में मैं प्रभु पर विश्वास करूंगा। And He is worthy and He is faithful. और वो जो योग्य है और वो विश्वास योग्य है। So we can wear the crown of Mr. Undeserving in our life. और हम जो है हमारे जीवन में वो जो श्रीमान जो किसी चीज के योग्य नहीं, उस तरह का ताज पहने। We can lay down all the complainings and murmuring today from our heart. और हमारे हृदय से वो सारे कुड़कुड़ा शिकायत की बातों को हम नीचे रख दें। Let's bring your Judah to God, the praise God, even though season. और आइए हम उस यहूदा को लेकर आए कि कुछ चाहे कुछ भी हो फिर भी प्रभु की स्तुति And करूंगा। we can say like Leah and David,
और हम जो है लिया और दाऊद की तरह कह We सकेंगे, can say like Paul and Silas, और हम पौलुस और सिलास की तरह कह Jonah and सकेंगे, Habakkuk. और जोना और हबक्कुक के जैसे। This time I will surely praise the Lord. और इस समय मैं जरूर प्रभु की स्तुति करूंगा, Even though और फिर भी I चाहे will praise the Lord. मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। Let's become the people of God that who can praise God in every season और of our आइए life. हम ऐसे व्यक्ति बने जो हर परिस्थिति में प्रभु की स्तुति करेंगे, Because He is enough for us. और क्योंकि वो हमारे लिए पर्याप्त है। May Lord help us. प्रभु हमारी मदद करे। Amen. आमीन।